So today's topic of discussion, that is physical features of India. Clear? And here we will talk about physiographic division. Physiographic division, ठीक है, of area. Clear? Physiographic division means India has huge land mass and its area. The area of this country. The area of this country is approx 3.28 million square kilometers. Okay, and in this sector we will have, we have to divide this land mass so that it becomes suitable to study. Okay, because the huge diversity of this country in the sector of geographical land, okay, it makes it difficult to study this country. Okay, that's why we have made physiographic division. Okay, so the major physiographic division is the Himalayan mountain. The first division is the Himalayan mountain, right? Himalayan mountain. Okay, this is mountain. Clear? So first we will discuss Himalayan mountain and we will make its analysis. ठीक है, हम एनालाइज करेंगे कि हिमालय में what is there, what is its geographical condition, what is its length, how much it is broad, ठीक है, what is its extension, ठीक है, and what is its location, ठीक है, and how many ranges are there in Himalaya, ठीक है, and what are the top peaks of this portion, and you can say what kind of gorges, valleys, right, hills they are located here. ठीक है, that we will analyze from this topic. So first you will have the Himalaya. Geographically it is young and structurally fold mountain. Himalaya is young, made up of young and fold mountain. Okay, Himalaya is made up of young and fold mountain. Structurally fold mountain because it has been produced by folding of bottom layer of Tethys Sea. ठीक है, यहाँ पे geosyncline structure takes place and here Eurasian plate, ठीक है, और तिब्बतन प्लेट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे, ठीक है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, द बॉटम पोर्शन इट फोल्डेड अप, ठीक है, एंड इट रेज्ड, ठीक है, एंड दिस फोल्डिंग एंड रेजिंग that gave it special characteristic of Himalayan mountain, and Himalayan mountain became young and fold mountain. Okay, so here we can say that there was, you can say its extension is different. इसका जो stretch है, ठीक है, it is northern borders of India, means it is located, Himalayan ranges is located on the northern border. This is our northern border. ठीक है, हमारी कंट्री का ये northern border है, means you know very well the direction. This is east, west, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, तो हिमालय हमारे नॉर्थ में है कि नहीं, क्योंकि इंडिया का हमारा जो टेपर सेक्शन है इस तरीके से है. ठीक है, एंड दिस इज योर मिडिल ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोज, है कि नहीं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज नॉर्दर्न पोर्शन. ठीक है, और नीचे वाला सदर्न पोर्शन है. तो हिमालय हमारे किस साइड में पड़ा, नॉर्दर्न पोर्शन. Okay, so in this manner we can say that these mountain ranges run in the west-east direction.
ठीक है, तो ये माउंटेन रेंजेस हमारे वेस्ट से किधर को रन करते हैं, ईस्ट। क्लियर? तो हिमालयन माउंटेन दे रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, क्योंकि वेस्ट की तरफ ज़्यादा अल्टीट्यूड है, ज़्यादा ऊंचाई है, और ईस्ट की तरफ थोड़ा लोअर हिल्स आ जाते हैं। दैट्स वाई हम हाई पीक्स टू लोअर पीक्स की तरफ मानते हैं, ठीक है। बट इंडियाज हाईएस्ट पीक इट इज लोकेटेड इन सिक्किम, ऐसे सिक्किम बना हुआ है एक जगह, ठीक है। वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। यस, कंचनजंगा, एंड इट इज लोकेटेड इन सिक्किम, है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, this term is asked generally in various competitive exams, in your exams, in CBSE board, आया भी था एक बार, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा यहीं पे है, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, अब हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसका तो टैबलेट किया हुआ है हाइट, वो आपके माउंट एवरेस्ट से सेकंड नंबर मतलब जो है और नीचे में आता है कि नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं दे फॉर्म एन आर्क, ठीक है, ये रग्ड माउंटेन बैरियर है। इट इज माउंटेन बैरियर मीन्स इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, ठीक है, जो हमारे चाइना वगैरह जैसे, ठीक है, या और भी हमारे जो भी एशियन कंट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू अटैक ऑन इंडिया बिकॉज इट इज़ रग्ड बैरियर। वहाँ से हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आते आते लोग ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रग्ड बैरियर कहा जाता है। इवन आपका जो अलेक्जेंडर थे, ठीक है, अलेक्जेंडर ही केम टू इंडिया बट बिकॉज ऑफ हिमालयन माउंटेन ही वाज डिफीटेड हियर। हिज आर्मी, पूरी की पूरी आर्मी हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करने में ही ख़त्म हो गई। उसकी जो है मतलब वहाँ के इतने प्रॉब्लम्स दे हैड फेस्ड, दे डाइड ड्यू टू वेरियस डिजीजेस, इलनेस, ठीक है, एंड हिज आर्मी बिकेम वेरी शॉर्ट, दैट्स वाई ही वॉज डिफीटेड बाई पोरस इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब स्टोरीज हमारे हिमालयन रेंजेस दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, फॉर इंस्टेंट एनिमल्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, क्लियर। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 2400 किलोमीटर, ठीक है। ये हिमालयन रेंजेस का एक आर्क बनाता है, ये आर्क ही तो है, मतलब ये जो शेप है ये आर्क का जो शेप है, एक आर्क है सर्कल का, है कि नहीं। तो ये हमारा एक आर्क बनाता है। तो इसको हम एग्जैक्टली जो है स्केल लेके तो मेजर नहीं कर सकते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेट लेंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद द नॉर्थ द विथ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसकी जो चौड़ाई है हिमालयन रेंजेस, दिस इज 450 किलोमीटर, इतना चौड़ा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास जो डाटा आया है दैट इज ओनली 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ता है। यहाँ हिमालयन रेंजेस की चौड़ाई कितनी है, 400, ठीक है, मतलब केवल 50 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, यानी यहाँ से कहाँ तक, पूरा बाजार तक, फैजाबाद, है कि नहीं, मतलब फैजाबाद तो 80 के आसपास पहुँच जाते हैं, 50 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। हमारे जो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है 450 किलोमीटर है हिमालय का, और अरुणाचल प्रदेश में केवल 400, ठीक है, विथ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये टेपर हो रहा है, मतलब यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, मतलब हिमालयन रेंजेस हमारे इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ कम चौड़ा है, क्लियर। ये इसका फीचर है हिमालयन रेंजेस का, क्लियर। 150 कह रहा कौन, 400 कहा था, ये आपका 150 था, 400 ये था, डाटा वाज दैट वन इज 400, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि ये कितना कम है और ये कितना ज़्यादा है, कश्मीर में ज़्यादा इसका है, क्लियर।
So in this way we can say that its altitudinal variations are greater in the eastern half than those in western half. ठीक है, इसका जो altitude है साइलेंट, द हाइट ऑफ हिमालयन रेंजेस ईस्ट में, जो सिक्किम है आपका ये ईस्ट पोर्शन है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर ये वेस्ट पोर्शन है। तो यहाँ पे जो पहाड़ की ऊंचाई है वो ज़्यादा है ईस्ट में, इसीलिए यहाँ पे कांचनजंगा है, ठीक है, और वेस्ट में जो है जो पहाड़ की ऊंचाई है दैट इज वेरी लेस। अंडरस्टैंड? तो यही फैक्ट है इसका, ठीक है। इन ईस्टर्न हाफ द अल्टीट्यूड मीन्स हाइट्स ऑफ हिल्स दे आर मोर दैन वेस्टर्न पोर्शन, ठीक है। वेस्टर्न पोर्शन में कम हाइट है, ईस्टर्न पोर्शन में ज़्यादा हाइट है, इसीलिए कांचनजंगा कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न हाफ में, इसीलिए वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, क्योंकि वहाँ के हिल्स का हाइट हमने क्या देखा, एवरेज ज़्यादा है। क्लियर? तो ये बात आपकी आती है एंड द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस है, ठीक है। फर्स्ट पैरेलल रेंज इज हिमाद्री, ठीक है। He tells the Himalaya a number of valleys also lie here, ठीक है। तो पहले हम लोग जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट है सबसे पहला सबसे नॉर्थ होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री इसको फर्स्ट रेंज कहेंगे, दिस इज रेंज, ठीक है। पहला रेंज आपको हिमाद्री इन्होंने बताया एंड इसके बाद इट इज मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, ठीक है, और इसकी हाइट क्या होती है हिमाद्री की? एवरेज हाइट 6000 मीटर, ठीक है। यहाँ के पहाड़ों की हाइट 6000 मीटर है बस, क्लियर। और इसके बाद जो है यू आर गेटिंग इट कंटेन्स प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स है, ठीक है। और उसके बाद दी फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय एसिमेट्रिक इन नेचर, इसकी सिमिट्री नहीं है, यहाँ पे अगर आप सिमिट्रिक एक्सिस बनाते हैं तो ये एक दूसरे के सिमिट्रिक नहीं है, ठीक है। हिमालय में कहीं भी सिमिट्री नहीं बनती, सिमिट्री पढ़ो ना क्लास 5th 6th में सिमिट्री पढ़ो है कि नहीं, तो यहाँ पे सिमिट्री नहीं होती कहीं भी। और इसके साथ द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ये किससे बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, राइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक रॉक है, फॉर्मेशन है रॉक का, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड, देयर इज स्नोफॉल, ठीक है, पेरिनियल स्नोफॉल, पेरिनियल मीन्स जहाँ साल भर बाद बर्फ पड़ती है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हिमाद्री, बिकॉज देयर इज पेरिनियल स्नोफॉल, साल भर वहाँ बर्फ गिरती है, ठीक है, स्नोफॉल होता है थ्रू आउट ईयर। एंड द रेंज lying on the south of Himadri forms a rugged mountain system। दूसरा रेंज आपके पास क्या होगा? ये फर्स्ट है, सेकेंड इज हिमाचल, ठीक है, हिमाचल रेंज। Here you have got हिमाचल रेंजेस, राइट। और ये जो हमारे हिमाचल रेंजेस हैं, ठीक है, इसी को लेसर हिमालय भी कहते हैं। इट इज मेड ऑफ कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ कॉम्प्रेस्ड, यस, एंड अल्टर्ड रॉक, ठीक है, ये कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। अल्टर्ड रॉक मीन्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, सेडिमेंट्री, राइट। और इसके बाद altitude varies from 3700 to 4500 मीटर। altitude
Altitude means height. 3,500 meter. 3,700. 700 to कितना? 4,500. 4,500. ठीक है, यहाँ के माउंटेन की हाइट है, मीन्स हिमाद्री से लेस है, इसीलिए ये लेसर हिमालय में आया। क्लियर? और इसके बाद आपके पास बहुत सारे डाटा हैं। इसका एवरेज विड्थ, ठीक है, 50 किलोमीटर है। एंड पीर पांजल रेंज फॉर्म्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। यहाँ पे कौन सा रेंज है? पीर पांजल। इसका विड्थ है आपका 50 किलोमीटर, ठीक है। एंड पीर पांजल रेंज, पीर पांजल रेंज, ठीक है, लोकेटेड हियर, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, पीर पांजल, ठीक है। यहाँ पासेस बने हुए हैं। पासेस क्या होते हैं? दे आर पैसेज, passes are passage between mountains from where transport activity can take place, isn't it? So there are passes also. और उसके बाद धौलाधर एंड महापर्वत रेंज, महाभारत, इसके अलावा भी एक धौलाधर और महाभारत, ठीक है। इट्स रेंजेस आर धौलाधर एंड महाभारत रेंज, ठीक है। दे आर लोकेटेड हियर। क्लियर? तो ये तो बात थी आपकी हिमाचल की, ठीक है। और यहाँ पे कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पैस्टोरलिस्ट प्लेस। यहाँ ग्रास लैंड बहुत है। एंड हिमाचल प्रदेश, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस वेयर शिमला इज लोकेटेड, ठीक है। शिमला जो है एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। एंड इट गिव्स लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। लोग टूरिस्ट आते हैं, सब विजिट करते हैं, दे यूज टू परचेज आइटम्स, दे एक्सचेंज करेंसी। क्लियर? उसके बाद हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। यहाँ क्या है? हिमाचल रेंजेस, दे आर फेमस फॉर हिल स्टेशंस, ठीक है। मसूरी, क्लाउड एंड, ठीक है, ये सब प्लेसेस हैं, सब हिल स्टेशन है, राइट। और उसके बाद द आउटर रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक्स। अब बारी आती है आउटर रेंज, जिसको हम कहेंगे शिवालिक्स, राइट। दिस इज थर्ड रेंज। क्लियर? शिवालिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शिवालिक्स में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स एंड मैप्स आर शोन हियर, यू कैन वॉच एट होम। इसका जो विड्थ है शिवालिक का 10 to 50 किलोमीटर वाइड, इतना चौड़ा है शिवालिक रेंजेस, ठीक है। इसको शिवालिक रेंजेस भी बोलते हैं, राइट। इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक है? 10 to 50 किलोमीटर एंड altitude from 900 to 1100, altitude from 900 मीटर to 1100 मीटर ऊंचाई। इसमें जितने भी हिल्स हैं उनकी हाइट बहुत कम है, दैट्स व्हाई दे आर शिवालिक्स, ठीक है। एंड द रेंजेस आर consolidated sediments brought from regional rivers, ठीक है। There are sedimentary rocks are there, ठीक है। They are made up of sedimentary rocks, ये पाए जाते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। लोग जैसे लेकर आते हैं ना गोल गोल पत्थर, शिवलिंग वगैरह बनाते हैं, जो है बहुत सारे लोग मंदिर में रखते हैं, शिव जी के मंदिर में, ठीक है। वो सब आपके सेडिमेंट्री फॉर्मेशन से बनते हैं। दे आर वेरी स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। उसको लोग ला करके अपने घरों में रखते हैं। दैट कम्स फ्रॉम शिवालिक रेंज, ठीक है। सो हियर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे थिक ग्रेवल एंड एलुवियम है, ठीक है। हियर इट कंसिस्ट ऑफ थिक ग्रेवल
से मिल करके बना हुआ है ये। क्लियर? अभी 5 मिनट का टाइम लो, वीडियो 5 मिनट का है, ठीक है? सो वी कैन से दैट these valleys are covered with longitudinal valley, ठीक है? यहाँ पे longitudinal valleys हैं, जैसे यहाँ पे dunes are longitudinal valleys, ठीक है? यहाँ पे dunes है, dunes are located, that is longitudinal valleys, उसी को हम लोग dunes बोलते हैं। They are located in शिवालिक्स, ठीक है? इसमें देहरादून वेरी फेमस, ठीक है? देहरादून सबसे फेमस है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे नेम है, कोटली ड्यून एंड पाटली ड्यून, ठीक है? दे आर वेल नोन ड्यून्स, ठीक है? हियर पीपल्स आर लोकेटेड, दे परफॉर्म टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है? एंड दे आर प्रोड्यूसिंग टिम्बर्स ऑल्सो, अंडरस्टैंड? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। देहरादून से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, यू विल गेट मसूरी, ठीक है? मसूरी इज वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, ठीक है? तो इस तरीके से यू विल कम ऑन वेरियस अदर पॉइंट्स, ठीक है? तो ये जो रीजन है, दे आर दीज डिवीजंस हैव बीन डिवाइडेड रिवर वैलीज। यहाँ पे क्या है? इंडस एंड सतलज, इंडस एंड सतलज रिवर, ठीक है? वो यहाँ से जो है गोस फ्रॉम हियर, ठीक है? दे आर ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। शिवालिक्स जो है आपके पंजाब हिमालय को भी कवर करता है, ठीक है? इस पोर्शन को हम लोग पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ठीक है? हिमाचल के नीचे का हरियाणा वगैरह। और इस तरीके से यू हैव गॉट the part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalaya, ठीक है? सतलज एंड काली रिवर, ठीक है? सतलज एंड काली रिवर part is known as, very important, is known as Kumaon हिमालय। इस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है? व्हाट इज कुमायूं हिमालय? द पोर्शन ऑफ हिमालय, द पोर्शन ऑफ शिवालिक हिल्स बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर, दैट इज नोन एज कुमायूं हिमालय। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड इन पीसीएस आईएएस एग्जाम, ठीक है? तो अभी से ही आप लोग याद रखिए। फिर नेपाल हिमालय जो है वो काली रिवर एंड टीस्टा रिवर के बीच में है, ठीक है? दैट इज वी विल टॉक अबाउट नेपाल हिमालय, पूरा नहीं मिटा रहे हैं। नेपाल हिमालय, ठीक है? इट इज लोकेटेड बिटवीन काली रिवर टीस्टा रिवर, ठीक है? बिटवीन हमारे काली रिवर और टीस्टा रिवर के बीच में इट कम्स नेपाल हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आपके जो टिक वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? सो देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। इन सबके रीजनल नेम भी हैं, ठीक है? उनके अपने अपने रीजनल नेम्स भी हैं, बट दे आर नॉट हियर। द ब्रह्मपुत्र मेड ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, जैसे बियॉन्ड दिखंग जॉर्ज है टीस्टा, TEESTA, टी गायब हो गया क्या? उसको टीस्टा रिवर बोलते हैं, नेपाल के पास। नेपाल कुछ नेपाल में आता है, कुछ इंडिया में आता है, क्योंकि नेपाल अलग हो गया ना, इसलिए उसका नाम नेपाल पड़ेगा। क्लियर? अब जो है दिखंग जॉर्ज है, ये आपका साउथ में है, मीन्स यहाँ पे ये दिखंग जॉर्ज, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, साइलेंट,
ब्रह्मपुत्र रिवर यूज टू मेक साउथ टर्न। ब्रह्मपुत्र रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और यहाँ से एक शार्प साउथ टर्न लेती है एंड इट फॉर्म्स जॉर्जेस। क्वेश्चन कम, व्हाट आर जॉर्जेस? जॉर्जेस आर डीप चैनल, ठीक है, फॉर्म्ड इन रॉक्स। जैसे हमारा ये पहाड़ है, ठीक है, और ये रिवर है, इसके मतलब ये पहाड़ के अंदर मतलब ये रिवर एकदम डीप चैनल बना के आ रही है, इधर से बैंक इसका उठा हुआ है पूरा। अंडरस्टैंड? नदी एकदम ऐसे लगी जैसे अंदर धंसी हुई है। इट इज फ्लोइंग, ठीक है, इन डीप पोर्शन, दैट इज योर जॉर्जेस। क्योंकि वो जॉर्जेस सीधे आके बे ऑफ बंगाल की तरफ उसको टर्न कर देते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को। इट फ्लोज फ्रॉम हिमालय, ठीक है, नॉर्थ आपके कश्मीर के पास जो है क्या कहते हैं, अलकनंदा, दैट प्लेस इज देयर, ठीक है। अलकनंदा से ये ओरिजिनेट होती है, राइट, एंड इट रन्स इन फ्रॉम इंडिया टू चाइना। इसका मोस्ट पार्ट क्या है, चाइना में। ब्रह्मपुत्र रिवर इट रन्स अक्रॉस चाइना एंड एट बिहार, एक जगह बिहार, ठीक है, इट इज लोकेटेड नियर असम, ठीक है, सिक्किम और असम के बीच में। वहाँ से ये एक साउथ टर्न लेती है, तब इंडिया में आती है, ठीक है, और थोड़ा ही दूर इंडिया में क्रॉस करके फिर इट गोज टू बांग्लादेश, यहीं से बांग्लादेश चली जाती है एंड फाइनली इमर्ज इन बे ऑफ बंगाल। बस और कहाँ जाएंगे, बे ऑफ बंगाल लास्ट। तो इस तरीके से वी कैन से दैट हियर दिस ईस्टर्न बाउंड्री इज नोन एज पूर्वांचल। यही जो हमारा ईस्टर्न बाउंड्री है, दिस इज नोन एज पूर्वांचल, इसी को हम पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ना पूर्वांचल कहाँ पे है, दैट इज ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय, दैट इज नोन एज पूर्वांचल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पूर्वांचल है, हियर हिल्स आर रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। पूर्वांचल में क्या पाया जाता है, सैंडस्टोन, एक तरह का स्टोन होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, ठीक है, दैट इज कंप्रेस्ड सैंड, पूरी तरह से कंप्रेस्ड होता है। और इसके ब्रिक्स हम लोग बना करके यूज करते हैं मकानों में। बहुत सारे जो महंगे महंगे मकान हैं, दे आर मेड अप ऑफ सैंड, ठीक है, मार्बल की तरह ही होता है, मार्बल थोड़ा और बेस्ट होता है। हाँ, सैंड स्टोन, हाँ, रेड भी होता है, करेक्ट, ठीक है, रेड कलर पिंक कलर में रहता है, एकदम डार्क रेड नहीं, पिंक कलर, ठीक है। दे आर मोस्टली समटाइम लाइट ब्राउन भी होता है। तो दे आर सेडिमेंट्री आल्सो, ठीक है। एंड पूर्वांचल कंप्राइजेज ऑफ 3 हिल्स, जिसको मीजो हिल्स कहते हैं। पूर्वांचल में आपके पटकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, ठीक है, ठीक है। तो पूर्वांचल में ये सब आता है, हाँ, ठीक है, मीजो हिल्स, मीजो हिल्स, ठीक है। इसमें क्या है, पटकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। दे आर वेरी फेमस, मणिपुर हिल्स, ठीक है। हाँ, दे बिकम्स मीजो हिल्स, तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मीजो हिल्स। मतलब मीजो हिल्स भी उसी में आता है, मेन मीजो हिल है, इसीलिए सारे टर्म इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट Himalayan ranges, okay, and tomorrow we will study about